Hi, Yogendra. Hi Nikhil. Hi, Hi, how are you doing? I'm good. How are you? I'm also doing fine. Thanks for asking. Awesome. So, everybody who's joining in now, welcome to the second episode of BizWiz Season 3. I hope you're having a good evening and a great Saturday. BizWiz Season 3 is basically a campaign that we run every few months where we speak to small business owners and get to learn from their experiences and insights. And, we speak to them about their strategies and, the other techniques that they apply. So season three particularly is about the festive season and the holiday season. And today we have Mr. Yogendra with us. He's the director and founder of Make My Mini. For anyone who hasn't heard of it, I very highly encourage you to go check out makemymini.com. It's basically a business where you can create miniature versions of yourself or your loved ones, and it's basically a gifting website. But I mean, that's enough out of me. I will let Mr. Yogendra talk a little bit more about, the journey and, how Make My Mini came about. So over to you, Yogendra. Thank you, Nikhil. First of all, I would like to thanks you and all the viewers and to give me this golden opportunity to speak. Let me introduce myself first. I pursued my BE from Indore in electronic and communication. So from 2013, I was working in US IT industry. And Okay, in 2018, I started the business. You all know, like Make My Mini. correct. So from there onwards, the journey of Make My Mini starts. So before that, I was in the recruitment field, and I was like just missing my electronics and the other things which I learned in my college time. So from Right. there, I switched to the job, and now like from last 5 years, full time, I'm doing this business, Make My Mini. That's wonderful. That's actually great. I actually was very, pleasantly surprised when I came across your website and your business basically because for me personally, I haven't seen many such business that offer, like miniature 3D models and that too of such Mhm. great quality. So, it was a very unique, gifting idea, gifting website that I'd come across. So, आई मीन अगर आप उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आइडिया आपको कैसे आया कि हम मिनिएचर वर्जन्स बना करके देंगे. एक्चुअली हाँ निखिल, हमारा जो फर्स्ट आइडिया था वो मिनिएचर का बिल्कुल भी नहीं था. सो अच्छा. एज आई टोल्ड यू कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीई परस्यू किया है. करेक्ट. सो एग्जैक्ट. मैं जब यूएस आईटी रिक्रूटमेंट में था तो मैं इस चीज को मिस कर रहा था कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कैसे कर सकता हूँ और क्या. देन आई केम अक्रॉस कपल ऑफ वेरी गुड ट्वीट्स फ्रॉम आवर पीएम लाइक फॉर इंडस्ट्री 4.0 कि करेक्ट. कैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आईओटी और ये सब जो है वो इंडस्ट्रीज को चेंज करने वाला है. हाँ So जी. I thought, let me do something with 3D printing, additive manufacturing. It can be a win-win situation अगर मैं बहुत इनिशियल लेवल पर इस चीज में चला जाता हूँ तो, हाँ क्योंकि जी. फेज बहुत इनिशियल है और अगर टाइम टू टाइम अगर ये ग्रो होगा तो हो सकता है कि ये मेरे लिए भी फ्रूटफुल चीज हो. ट्रू. तो जब मैंने 3D प्रिंटिंग के बारे में सर्च करना शुरू किया तो आई केम अक्रॉस वेरी हाई रेंज ऑफ प्रिंटर्स, 50 lakh and above 50 lakh also. So ओके. from there onwards, what I did, I started communicating with a couple of the local peoples who can help me with the different sectors जो कि अभी परस्यू ही कर रहे थे अपना बी या कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे वो मेरी हेल्प कर पाए और एक हम 3D प्रिंटर बना पाए. तो राइट. वैसे हमने एक 3D प्रिंटर बनाया और 3D प्रिंटर बनाने के बाद हमारे पास में जो चैलेंज था वो ये था कि 3D प्रिंटर से क्या बनाए. हाँ जी. क्योंकि द थिंग इज कि आप इंडस्ट्री में तो आ गए हो, आप इंडस्ट्री की चीज लोगों को बताना भी चाहते हो, पर जब आपने एक जॉब स्विच कर लिया है और आप फुल टाइम एक बिजनेस में आए हो तो आपको ब्रेड एंड बटर की भी जरूरत है. हाँ तो जी. वहां से हमारे पास में ये मिनिएचर का आइडिया आया कि क्यों ना, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग. वन इज द 3D प्रिंटर एंड द अनदर इज 3D स्कैनर. 3D स्कैनर जो होता है उससे हम किसी भी चीज को, मतलब हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम स्कैन करके, जैसे हम आपने 2D स्कैनिंग के बारे में सुना होगा, पेपर रखते हैं और स्कैन हो जाता है. हाँ जी. इन द सेम वे वी कैन स्कैन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप स्कैन करके उसका डिजिटल फाइल रेडी कर सकते हो. ओके. तो ओके. व्हाट वी डिड, हमने कुछ मतलब ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया और उसका फिर 3D प्रिंट निकाला. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू
हमने इनिशियली कुछ जो मिनिएचर्स बनाए थे वो ऐसे थे जो कि केवल सिंगल कलर होते थे, जैसे कि आपने स्टैच्यूज वगैरह अपने किसी भी स्क्वायर पे लगे हुए देखे होंगे, सिंगल राइट। कलर ब्रॉन्ज या फिर ब्लैक, तो वो हमने स्टार्ट किया। देन वी पुट इन कि यार ये चीज जो है वो गिफ्टिंग के काम आ तो सकती है, पर इट इज काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट, तो हमें इसमें कुछ और इंट्रोड्यूस करना होगा। तो वहां जब हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करने की बात सोची, तो फिर हमने सोचा कि इसको हम पेंटिंग आर्टिस्ट को हमारे साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो ओके। कि उससे हमारे लिए एक सिचुएशन ये बन सकती है कि हम पूरा 3D पेंटेड मिनिएचर दे सकते हैं। ओके। तो फिर वहां से ये 3D मिनिएचर बनाने का हमारा काम स्टार्ट हुआ। इट वॉज मोर चैलेंजिंग बिकॉज जब हमने इनिशियली इसको स्टार्ट किया था तो इट वॉज लोकली इन इंदौर ओनली। जी। अब हम स्कैनर लेके अलग अलग जगह पे या इंदौर में या आउट ऑफ इंदौर जैसे पैन इंडिया नहीं जा सकते थे। अच्छा। अब से एन एग्जांपल, आई वांट टू स्कैन यू, यू आर लाइक इन द डिफरेंट सिटी एंड आई एम इन इंदौर. So राइट। for single miniature, if I will come to you for the scanning, or it is also not possible that you come to me for every scanning. राइट। Like तो उस चीज को हमने बहुत फेस किया कि यार हम क्या इंदौर तक ही सीमित रह जाएंगे। देन आई थॉट दैट हमें इसमें और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए, हमें 3D स्कैनिंग की जगह 3D आर्टिस्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। सो नाउ माई बिजनेस इज समथिंग कि हम पहले किसी भी जो हमारे पास में ई कॉमर्स हमारी वेबसाइट है macmymini.com, उस पर किसी का जो फोटो हमारे पास में आता है 2D में, उसको हम पहले 3D में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D आर्टिस्ट। जब वो 3D फोटो हमारे पास में रेडी हो जाता है, सो वी शेयर द मॉकअप पिक्चर विद द कस्टमर कि see, this is what exactly we are making, because sometimes people like it like as a caricature, sometimes they want more resemblance in that. So all this thing can be doable in the mockup. At the time जब वो mockup हमारे पास में ready हो जाता है और customer is good to go that this is the perfect one, you can start painting it. Then we print it with our 3D printing technology, and then the final product is what you get, the miniature. So if you will see, this is the like the mock-up picture which converted into the 3D model. Right. And then when we start painting it, you will see like this is the final miniature we get in any pose. In the background, if you will see like lots of miniatures we have like with the different pose and the different type of resemblance. Correct. Okay. So this was the core idea. सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि जो ये वाले 3D मॉडल्स आपने अभी मुझे दिखाए, ये ओरिजिनली फोटोग्राफ्स थे, लाइक दीज वर जस्ट इमेजेस दैट वर सेंट टू यू, उसमें से आपने आर्टिस्ट के साथ मिलकर के फिर इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया? एग्जैक्टली इट इज। सो अगर इंदौर में कोई हमारे पास में अवेलेबल है एंड दे वांट द 90-95% ऑफ रिजेम्बलेंस, देन वी डू हैव द 3D स्कैनर अवेलेबल। तो वो हमारे स्टूडियो पे आके अपने को स्कैन करवा सकते हैं और उससे हमारा मॉडल रेडी हो जाता है। और अगर आप इंदौर के बाहर हैं, पैन इंडिया या इंडिया के बाहर भी हैं, तो आप वेबसाइट पे फोटो अपलोड कर दीजिए, हम विद इन 10 days उसका एक स्कल्पचर रेडी करके आपको शो कर देते हैं। एंड आफ्टर योर कंफर्मेशन वी विल टेक मोर 10 days फॉर द पेंटिंग, हैंड पेंटिंग वर्क एंड द प्रिंटिंग वर्क, और फिर वो आपके पास में शिप हो जाता है। सो दिस इज व्हाट आवर फोटो इज। फिर हमने धीरे धीरे इसमें कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। There was also one more challenge which I faced in 2018. उस समय QR कोड इतना ज्यादा नहीं चला था, डिफरेंट। तो हम ये फेस कर रहे थे कि हमें कैसे कुछ एक अच्छा पेमेंट गेटवे मिल जाए, क्योंकि बैंक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने में शायद हम वो पैसा थोड़ा बहुत बचा सकते थे, पर वो इतना वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस थी। So one of my friend at that time, like he's running the business called Digitlastic, मनीष भगत, तो उन्होंने मुझे बताया कि पेमेंट गेटवे करके भी कुछ होता है। तो फ्रॉम दैट टाइम वी लाइंड अप विथ यू इंस्टामोजो इन 2018 मार्च और अप्रैल, और पिछले 5 साल से इंस्टामोजो के साथ अच्छा चल रहा है काम। That's wonderful, that's wonderful. तो आपका जो बिजनेस की शुरुआत आपने जैसे आपने अभी कहा कि काफी कुछ चैलेंजेस थे, काफी लर्निंग्स थी आपकी कि पहले व्हेन यू ट्राई टू फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स पार्ट ऑफ इट, कि सिर्फ इंदौर के अंदर ना रह जाए, या अगर पैन इंडिया भी करना है, या अगर ग्लोबली भी अगर आपको भेजना है तो वो कैसे होगा। तो मुझे सिर्फ ऐसा समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंस आपका बिजनेस ही आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा नया रहा होगा ये आइडिया, मतलब इन द सेंस इंडिया के अंदर और इंदौर के अंदर भी, तो आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स थे ऐसे कि मतलब आपने रिसर्च तो ऑफकोर्स किया होगा, बट किसी और बिजनेस मतलब कोई सिमिलर बिजनेस जो करता हो गिफ्टिंग इंडस्ट्री के अंदर ही, जो
मे बी नॉट 3D मॉडल्स बट कोई दूसरी तरीके की चीजें अगर वो प्रोडक्शन करते हो, तो आपने वो सीख कहाँ से ली? कि मतलब प्रोसेस क्या हो सकता है इस चीज का, वो आपने कहाँ कैसे सीखा, या मतलब यू जस्ट फिगर्ड इट आउट ऑन द गो ओनली? नॉट ऑन द गो, ये पूरा एक प्रोसेस था, उसमें बहुत समय लगा मुझे। ऐसा नहीं है कि लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट वाज रियली अ प्रोसेस ऑफ 1.5 years। तो इनिशियली जब मैंने 2017 में जॉब क्विट किया था, तो इट वाज अ टाइम ऑफ अगस्त सितंबर, और मेक माई मिनी जो हमारा फाउंड हुआ वो फाउंड हुआ है 2018 मार्च अप्रैल के बीच में। करेक्ट। तो ये जो बीच का फेज था उसमें मेरे पास में दो चैलेंज थे, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन यूएस आईटी रिक्रूटमेंट, तो मेरा एक नाइट शिफ्ट होता था। राइट। तो पहले तो मुझे इस चीज से ओवरकम करना था कि क्या मैं नाइट की जगह दिन में अपना काम सेटअप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी टाइमिंग भी वो हो चुका था जो हाँ नाइट जी। शिफ्ट वालों का होता है। करेक्ट। तो पहले मैंने इसके लिए इनिशियली कुछ 2-3 महीने एक छोटा जॉब किया इंदौर में ही, एक 3D प्रिंटिंग कंपनी था, वहां पर मैंने जॉब किया 3 महीने। उन 3 महीने में मैंने ये समझा कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है, उसका ओके। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद में जब मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, हम इस चीज को किसी मतलब एक नया मोड़ दे सकते हैं, हाँ वी जी। कैन डू बिजनेस एंड जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दिस। करेक्ट। सो उस समय मैं ये भी देख रहा था कि मतलब गिफ्टिंग इंडस्ट्री तो इट इज अ लाइक 24/7 इंडस्ट्री। रोज आपके पास में किसी किसी का बर्थडे होता है तो आपको कुछ गिफ्ट चाहिए होता है, हाँ जी। राइट। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपके पास में 1 घंटे पहले आपको पता लगा हो कि यार टुडे इज माय फ्रेंड्स बर्थडे एंड आई नीड समथिंग। सो वो चीज को भी हमने फिर ओवरकम किया, बिकॉज व्हेन वी गो विद द मिनिएचर काइंड ऑफ थिंग, तो मिनिएचर में मैं 20 से 25 दिन का हमारा एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में फिर आपको पहले से प्लानिंग करना होता है कि हाँ, एग्जैक्टली। मुझे यही गिफ्ट देना है, और फिर वो बनाने के लिए आप ऑर्डर करते हैं। तो हमने कुछ की चेन्स निकाले, जो लिथोफिल्म की चेन थे जो हम 3D प्रिंटिंग से बनाते हैं, वो 1 या 1.5 घंटे में रेडी हो जाता है, तो वी कैन गिव इट टू द कस्टमर एट द सेम डे। सो वो चीज को हमने प्रोसेस में लिया। और मेनली विद द मिनिएचर व्हाट हैपेंड दैट जब मैं इस इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा था, तो मुझे कुछ मतलब मैं डे बाय डे लोगों से मिलता था कि मैं समझना चाह रहा था कि कैसे हो सकता है, इसको इसको किस तरीके से फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। तो कुछ आर्टिस्ट से मेरी बात हुई जो कि मतलब बहुत पहले से उनके फोर फादर्स के समय से वो ये काम कर रहे थे, मिट्टी में काम जो होता है अपना हाँ जी। स्कल्पचर्स रेडी करने का, हाँ जी। या रेजिन में। तो जब उस चीज से डिटेलिंग की बात पता पड़ी, सो लाइक फिर ऐसे करके मैं उनके साथ कनेक्ट भी हो गया। So currently also I am working with that or that team only. So we do have the core team of 5 people जो कि अलग अलग सेक्टर संभालते हैं। हाँ जी। तो उन 5 लोगों के साथ ही मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, एंड आई फील वेरी लाइक ग्रेटफुल कि मुझे मतलब जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी टीम है। तो एक एक बंदा जो है वो अपना काम पूरी तरीके से समझता है कि उसको क्या करना है, तो मुझे नहीं बताना पड़ता कि यार आपका काम आपको कैसे करना है। तो आई एम फ्री टू लाइक थिंक अबाउट द न्यू मॉडल्स एंड द न्यू इनोवेशंस अबाउट द गिफ्टिंग, कि यार इसके बाद और क्या किया जा सकता है। रिसेंटली वी इंट्रोड्यूस द मून लैम्प। तो मून लैम्प जो है वो भी 1 या 2 दिन में हम उसको बना करके डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को। सो दिस इज समथिंग के यू विल हैव योर फोटो एंड द कोटेशन ऑन द मून। So the idea is the lamp will be fully in the the shape of moon with राइट। all the backgrounds and other things. तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने करंटली अभी 10 से 12 चीजें हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, जो पूरी तरीके से 3D प्रिंटिंग पर ही डिपेंड कर रही अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो योगेंद्र जी, सिंस मतलब हमारा जैसे ये पर्टिकुलर जो हमारा लाइव सेशन चल भी रहा है, इसका मेन थीम जो है फेस्टिव सीजन में कैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैसे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, या जो हॉलिडे सीजन होता है। एंड इट्स परफेक्ट कि आपका भी गिफ्टिंग इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इज एवरग्रीन। मतलब जैसे आपने कहा कि किसी ना किसी का कुछ बर्थडे रहता है, एनिवर्सरी रहते हैं, तो है। वो सब तो आते रहते हैं। बट अगर इफ यू हैड टू सॉर्ट ऑफ लिस्ट डाउन, या अगर 2-3 पॉइंटर्स अगर आपको देने हो कि किसी को अगर ई कॉमर्स के अंदर एक अपना गिफ्टिंग का बिजनेस करना है शुरू, गिफ्टिंग इंडस्ट्री के अंदर उनको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो कौन सी चीजों को उनको मतलब ध्यान में रखना ही चाहिए? मतलब 1 या 2 पॉइंट्स अगर आप ऐसे बता सकें अपनी लर्निंग से। निखिल, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स तो बहुत बेसिक लेवल से आज कोई भी स्टार्ट कर सकता है। लाइक इफ यू विल से दैट कि हमें इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करना है,
या आप व्हाट्सएप के थ्रू जो अभी बहुत रिसेंट मतलब ट्रेंड चल रहा है कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के, पर वहां आप एक सीमित लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट ऑन व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम, जब तक आपकी कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगा, जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि आप क्या बेच रहे हैं या कैसे कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर आपके पास में आपका वेबसाइट है तो आपको मेनली दो ही चीज चाहिए, एक तो आपका जो लोकल रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा जीएसटी, क्योंकि अगर आपको आपके सिटी या आपके स्टेट के बाहर सेल करना है तो वो बिल्कुल बेसिक नीड है। और मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट इसलिए ज्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि मतलब मेरा एक मानना होता है कि अगर आपकी वेबसाइट एक बार रैंक हो जाता है, अगर उसमें मे बी इट विल टेक अ टाइम ऑफ 6 मंथ, 8 मंथ और 1 ईयर, तो आप डे टू डे बेसिस पे शुरुआत में इंस्टाग्राम और बाकी जगहों से सेल कर सकते हैं। पर एक बार जब आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा तो आपकी एक बहुत मेजर कॉस्ट जो ई कॉमर्स वेबसाइट लेती है 15 से 20% का जो उनका टारगेट होता है, वो आपका प्रॉफिट बन जाए। तो आपको जो ये जैसे अगर मैं इंस्टा मोजो की बात करूं तो इंस्टा मोजो भी जो अगर लाइक यू आर ऑल्सो इन अ बिजनेस, राइट, बिजनेस ऑफ पेमेंट गेटवे, तो एक वो जो 2-3% का जो मार्जिन होता है वो इतना अखरता नहीं है स्मॉल बिजनेसमैन को, लेकिन जब ई कॉमर्स पे आप सेल करने जाते हो और वहां पे वो 20 से 25% हो जाता है, लाइक फिक्स्ड क्लोजिंग फीस होता है उनका। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका भी वो मार्जिन रखते हैं, तो वो मार्जिन आप पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली आपको अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आपका ब्रेड एंड बटर भी देखना है, साथ में कंपनी का ब्रेड एंड बटर भी देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले इन्वॉल्व हो, आपके साथ में जो 4-5-7 लोग इन्वॉल्व हैं इनिशियल लेवल पे, आपको उनके बारे में भी सोचना है। फिर आपको कंपनी को भी डे बाय डे फीड करना है, क्योंकि जब तक आप कुछ कैपिटल कंपनी में नहीं लगाओगे आप उसको कंपनी को नेक्स्ट लेवल ग्रो नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो मेरा मानना यही रहता है कि आपको हो सकता है कि उसमें साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, पर कोशिश ये करें कि आपकी वेबसाइट भी कहीं ना कहीं गूगल पे और ब्राउजर पे रैंक होती रहे। उससे ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में वो इतना ज्यादा बेनिफिट देता है ना कि आपके लिए वो जो छोटा सा अमाउंट जो शुरुआत में आपने लगाया है वो फिर एक निग्लिजेबल हो जाएगा एक समय के बाद। करेक्ट करेक्ट, सही बात है, वो तो सही बात कही आपने। तो जैसे मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था, जो आप शुरू में आप बात कर रहे थे इंडस्ट्री 4.0 के बारे में, तो मुझे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि हम 3D मॉडल्स के साथ करेंगे, तो जैसे आप बात कर रहे थे 3D स्कैनर के बारे में और ये सारी जो मशीनरी है, तो उसको उसके बारे में भी सीखने में आपको थोड़ा थोड़ा वक्त लगा होगा, उसमें भी अलग अलग चैलेंजेस आए होंगे, तो उसके बारे में हम जरा थोड़ा बात कर सकते हैं कि मतलब जैसे आपने ऑफ कोर्स विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1 2 3 अभी हम चौथे वाले में हैं, तो उसको लेकर के आपने मतलब कैसे मशीनरी को जो है अपने करंट बिजनेस में आपने कैसे अडेप्ट किया और वो आपने कैसे फिर आगे ग्रो किया? लेकिन एक बार जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा, तो मेरा मेन चैलेंज ये था कि 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री 2018 के समय तक इतना ग्रो नहीं हुआ था, और साथ में 3D प्रिंटर्स भी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। Correct. और जो अवेलेबल थे वो अगर आप अभी के समय में किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या कहीं जाकर 3D प्रिंटर का रेट देखेंगे, तो जो प्रिंटर अभी 20 से 25 हजार रुपए में अवेलेबल है, वो प्रिंटर उस समय 1 लाख से नीचे नहीं थे। 2018 में 5 साल पहले वो प्रिंटर्स इतने महंगे थे। तो इनिशियल लेवल पे मेरे पास में भी एक कैपिटल था जिससे मुझे सेटअप भी करना था और बिजनेस को एक बूस्ट भी देना था। तो उस समय मैंने 3D प्रिंटर फिर लोकली असेंबल किया। मैंने प्रिंटर ना खरीदते हुए पहले 3D प्रिंटर असेंबल किया, और उस असेंबली प्रिंटर से ही मैंने स्टार्टिंग की। तो इंडस्ट्री 4.0 अगर देखें तो मेनली उसमें 4 चीजें आती है, जिसमें से मोस्ट ऑफ दी पीपल 3 मेन चीजों के बारे में जानते हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, the second one is additive manufacturing, and third is the AI, artificial intelligence. तो ये 3 चीजें मेनली हर एक व्यक्ति को पता है कि आपका कैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें क्या है, इंडस्ट्री अभी आप देखेंगे कि थोड़े समय में जो इंडस्ट्री है वो भी 3D प्रिंटर्स को इतना जल्दी अडॉप्ट करने वाली है कि 2025 या 2027 तक 90% ऑफ द वर्क जो कि स्पेयर पार्ट्स का और वो है, वो सारा 3D प्रिंटिंग पे आके वो हो जाएगा। इवन अगर आप देखें कि जो राफेल या जो भी हमारे पास में एयरशिप्स अभी आ रहे हैं, उनके पार्ट्स भी अब 3D प्रिंटर से ही प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको आपके पास में स्पेयर पार्ट रखने का जरूरत नहीं है। सेम एग्जांपल की मुझे गियर की जरूरत है, अगर आप देखें कि आपके पास में एक गाड़ी है, उसके लिए आपको एक गियर की जरूरत है,
करेक्ट। तो आपने अगर वो गाड़ी यूएस से इंपोर्ट किया है तो उसका जो गियर है मे बी पॉसिबल वो अगर आप इंपोर्ट करके मंगाएंगे तो वो इंपोर्ट करके गियर ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आपको हो सकता है कि पड़ जाएगा। हाँ जी। अब अगर इंडिया में वो इंडस्ट्री है और उसके बारे में चीजें हैं तो आप कितने स्पेयर पार्ट्स रखेंगे? आपको हर एक स्पेयर पार्ट का कुछ ना कुछ। सो नाउ द थिंग इज कि आपको स्पेयर पार्ट रखने की जरूरत नहीं, यू विल हैव अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ दी स्पेयर पार्ट्स। आपके ओके। पास में आपके ड्राइव पर हर एक पार्ट का डिजिटल फाइल रेडी है। ओके। यू जस्ट हैव टू गिव द कमांड टू 3D प्रिंटर, वो 3D प्रिंटर आपके लिए वो स्पेयर पार्ट प्रिंट कर देगा, आप उसको डायरेक्टली आपके मशीनरी में यूज कर लेंगे। सो इट ओके। विल बी अ विन विन सिचुएशन, आपको किसी भी चीज का स्पेयर पार्ट रखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत जल्दी अडाप्ट हो रहा है ये टेक्नोलॉजी। तो आप कह रहे हैं कि जो मतलब एक्चुअली मतलब जो स्पेयर पार्ट हम मान लीजिए इंपोर्ट कराना चाहेंगे और जो हम 3D प्रिंट करेंगे, उसका फंक्शनैलिटी दोनों का सेम रहेगा, मतलब ऐसा क्वालिटी डिफरेंस कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल क्वालिटी डिफरेंस नहीं होगा। 3D जो प्रिंटिंग है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, वो टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत हाई एंड पे आ चुका है। ये ओके। इसको भी 50-55 साल से ही चल रहा है 3D प्रिंटिंग। ऐसा नहीं है कि वो अभी आया है, लेकिन अब ये बिल्कुल सेचुरेशन स्टेज ऐसा आ चुका है कि आपके पास में प्रिंटर ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं और उनको अडाप्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। वी कैन प्रिंट विथ द लिक्विड रेजिन, we can print with the plastic material, we can even print with the like metals, करेक्ट। ओके। टिटेनियम और स्टेनलेस स्टील और अलॉय से भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो जब आप अलॉय से प्रिंट करने जाते हो तो वहां अब देखिए, अगर आप नॉर्मल अपने जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी जिसे हम सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, वो देखा हो। हाँ अगर जी। आपको कोई भी पार्ट बनाना है तो आपके पास में मेनली क्या चीज है? आपके पास में मेनली एक आयरन ब्लॉक है या स्टेनलेस स्टील का ब्लॉक है, ओके। और आपका सीएनसी मशीन उसको काटेगा या फिर जो आपका जॉब वर्क करने वाला है हम्म। वर्कशॉप में, वो उसको करेक्ट। काट के और फिर उस डिजाइन में कट करेगा, जब जाके आपका पार्ट रेडी होगा। हाँ तो जी। वहां होता क्या है कि एक तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है। अगर आप एक 100 ग्राम्स के पार्ट में से 50 ग्राम्स ऑफ मटेरियल तो आपका वेस्टेज ही जा रहा है, तो हम्म। 50 ग्राम ऑफ मटेरियल से आपका पार्ट निकला है, राइट। बट यहाँ आप केवल 50 ग्राम ऑफ रॉ मटेरियल इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर आप मेटल आपके 3D प्रिंटर को दे करके और उस 50 ग्राम का ही एक पार्ट निकाल सकते हैं। सो जो मटेरियल का वेस्टेज है वो भी इसमें बहुत कम हो जाता है। सो इसलिए इवन आप एक सिमिलर पार्ट के लिए, से एन एग्जांपल कि आपके पास में दो ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स हैं जो दोनों 3D प्रिंटेड है, तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि उन दोनों 3D पार्ट्स में से किसको आपको 10 ग्राम्स का वेट देना है और किसको 50 ग्राम्स का वेट देना है। करेक्ट। सिमिलर अगर आप देखेंगे तो वो दोनों इक्विवेलेंट दिखेंगे, लेकिन हम्म। उन दोनों के बीच में जो है वो वेट का डिफरेंस होगा। हाँ तो जी। ये चीज सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं थी, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आप ये कर सकते हैं कि आपकी मशीनरी को कितना लाइट वेट पार्ट चाहिए या कितना उसको हैवी वेट पार्ट चाहिए। ओके। इवन इन द स्कल्पचर्स ऑल्सो, जब हम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट जब हम स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं कि नहीं, मुझे ये स्कल्पचर जो है वो कार के डैशबोर्ड पे लगाने के लिए चाहिए। तो कार के डैशबोर्ड पे लगाने वाले मिनिएचर्स हम कोशिश करते हैं कि अधिकतर रेजिन में बने, बिकॉज रेजिन इज द हार्ड मटेरियल। तो जब हम रेजिन में 3D प्रिंट करते हैं उसे, तो होता क्या है कि उसका इफेक्ट जब आपकी कार अगर धूप में रखी हुई है तो उस पे उस रेजिन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और अगर आप उसको शो पीस में रखने के लिए या घर में रखने के लिए बड़ा बनवाना चाह रहे हैं तो वी यूज द प्लास्टिक मटेरियल। तो वो हमें, इसीलिए हमने हमारे वेबसाइट पर भी कैटेगरीज बना रखी है कि आपको वो मॉन्यूमेंट के तरह चाहिए, मेमोरियल मिनिएचर है, वो आप गिफ्टिंग के पर्पज से लेना चाह रहे हैं, आपकी कार डैशबोर्ड के लिए वो मिनिएचर है, सो दैट कैन बी डूएबल। अंडरस्टूड। तो मेक माई मिनी पे थोड़ा आते हुए वापस की, जैसे आपका जो मेक माई मिनी का ही जो इसमें है बिजनेस, वो उसके लिए जैसे आपने कहा कि ओवरऑल तो ऑफ कोर्स डिमांड रहेगा ही, क्योंकि गिफ्ट्स है तो गिफ्ट्स तो एंड मतलब आई पर्सनली थिंक कि जैसा आपका प्रोडक्ट का ये है कैटेगरी है, आई डोंट नेसेसरली थिंक कि कोई ओकेजन के लिए ही जरूरत हो। किसी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ऐसे ही मन कर गया हो, बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अपने में बहुत कॉमन चीज नहीं है, तो शायद लोग ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करते देखने के लिए, नहीं मुझे अपना एक मिनिएचर वर्जन बनाना है या अपने मम्मी पापा का बनाना है या अपने सिग्निफिकेंट अदर का बनवाना है, उस तरीके से। तो
इस तरीके से आपने मेक माई मिनी के लिए क्योंकि अभी तो आपको 5 साल हो गए, आपने कुछ ऐसे पीक सीजन्स देखे हैं अपने बिजनेस के कि इस दौरान या इस पर्टिकुलर मतलब सीजन हो गया या हॉलीडे हो गया, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे राहुल जी से भी, वो बोल रहे थे कि रक्षाबंधन के टाइम में थोड़ा ज्यादा होता है एंड वैलेंटाइंस डे के टाइम में थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसा आपने नोटिस किया है कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसे कोई एक पीक सीजन जैसा कुछ नोटिस किया हो आपने? अगर कैलेंडर ईयर की हम बात करें तो सबसे हम्म। ज्यादा पीक सीजन निखिल जो होता है वो वैलेंटाइन डेज पे होता है। इवन हमारे पास में वैलेंटाइंस की जो बुकिंग होती है वो अक्टूबर नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, दिवाली के एंड के बाद में। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि हम न्यू ईयर के लिए गिफ्टिंग के लिए कुछ प्लानिंग करें। हाँ पर जी। जो मैं पिछले 3 साल से एक मतलब पीक देख रहा हूँ, वो पीक हाँ यही जी। होता है कि न्यू ईयर से भी ज्यादा कैलेंडर ईयर अगर हम देखें तो कैलेंडर ईयर में सबसे पहले वैलेंटाइन पर सबसे ज्यादा पीक होता है। और द ओके। मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारे जो मिनिएचर्स होते हैं वो वैलेंटाइन के समय पर ही होते हैं। और अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट 2 2 इयर्स जब कोविड का समय था, हाँ जी। तब तो अक्टूबर नवंबर से ही हमने इसका पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वी नो कि अब जो है इस इंडस्ट्री में मतलब ई कॉमर्स ही मेनली टारगेट होने वाला है। करेक्ट। आप ऑफलाइन जाके गिफ्टिंग उस समय खरीद नहीं सकते थे। तो वो एक अच्छा पीक सीजन था, हमने देखा, उसके लिए हमने बहुत पहले से प्रिपरेशन भी कर रखा था। कुछ सीजन होते हैं जैसे कि आप देखें कि दिवाली के बाद का जो समय होता है, हम्म। अक्टूबर नवंबर 15 से लेके जो दिसंबर 15 तक का समय होता है, हाँ वो जी। थोड़ा कोल्ड टाइम होता है हमारे लिए। और ओके। एट द सेम टाइम जो रक्षाबंधन के बाद का समय होता है वो हमारे पास में कोल्ड टाइम होता है। तो राइट। उस समय पे हम मेनली कोशिश कर लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि हमारे पास में जो अगला सीजन आने वाला है गिफ्टिंग के लिए, जो रक्षाबंधन मेनली होता है, दिवाली पे भी हमारा सेल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे जो मून लैम्प और लाइटनिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ वो जी। प्रोडक्ट्स दिवाली के समय पे बहुत चलते हैं। करेक्ट। नॉट द मिनिएचर वन, बट जो बाकी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। बिकॉज अगर आप हमारा पॉकेट साइज देखेंगे, अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करके, तो हमारे पास में 299 से लेकर के 699 तक के मिनिएचर्स हैं। टू अच्छा। नाइनटी नाइन में हमारे पास में कीचेन, बिकॉज हम नहीं चाहते कि किसी भी मतलब रेंज के कस्टमर को हम छोड़ें। हाँ तो जी। हमारा पहले जो हमने स्टार्टिंग किया था, वो स्टार्टिंग जरूर हमने मिनिएचर से किया था। उस समय हमारी वेबसाइट पे कुछ नहीं होता था, द ओनली थिंग वी वर सेलिंग वाज द मिनिएचर। पर राइट। जैसे जैसे हम इस चीज में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमको समझ में आया कि कस्टमर हमारी वेबसाइट तो विजिट कर रहा है और ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है, हाँ पर जी। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे पास में अबेंडेंट कार्ड बहुत ज्यादा हो रहे हैं? क्यों हमारे ओके। पास में ऐसा हो रहा है कि मतलब कस्टमर फाइनल गेटवे तक जाकर के और फिर पेमेंट नहीं कर रहा है? तो हाँ उस जी। चीज को हमने कई कस्टमर्स के साथ बात की, हमारी कस्टमर जो टीम है, कस्टमर सर्विस टीम, हाँ जी। उनसे जो हमें फीडबैक मिला वो ये मिला कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर वांट टू ऑर्डर द मिनिएचर, बट राइट। दे जस्ट वांट समथिंग कि यार मुझे पहले ट्रस्ट हो इस वेबसाइट पे। क्या मैं 7,000 या 4,000 रुपए का एक प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले इस वेबसाइट पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? हाँ तो जी। उसके लिए हमने क्या किया कि जो एक छोटा प्रोडक्ट है 299 रुपीज का या 1,000 रुपीज का, जो हमारा मून लैम्प है, उन प्रोडक्ट से कस्टमर को एक फेथ बिल्ड हुआ हमने। क्योंकि राइट। हमने आप यू विल नॉट बिलीव, इन 2018-19 सीजन और 19-20 में हमने करीबन करीबन 20,000 से ऊपर कीचेन सेल की। अच्छा। उसका ओके। कारण यही था कि फुटफॉल ज्यादा था, और वी वर द फर्स्ट इन द 3D प्रिंटर मिनी 3D प्रिंटिंग मिनिएचर्स। अब बाद में रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स इसके अराउंड हुए जो कि 3D मिनिएचर्स और इसमें काम कर रहे हैं, पर राइट। वहां हमारे पास में फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो उस समय लोगों ने हमारे उस छोटे पॉकेट साइज वाला जो कीचेन है, हाँ उससे जी। हमें जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो हमने देखा कि जो लोग हमारा 299 वाला प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, वही वापस से जब वो जल्दी से डिलीवर हो जाता है उनको, हाँ तो उनको जी। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं यार, मैं 30 दिन के लिए अपने जो 3,000 या 4,000 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, उसमें मैं फेथ कर सकता हूँ कि नहीं, वो 30 दिन का समय इन्होंने लिखा है, पर वो हमारे पास में 30 दिन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा देने के बाद में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कस्टमर को चाहिए होता है कि वो आप हम मेरा प्रोडक्ट कब रेडी होगा, आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। क्यों आप मुझे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। बट द प्रोडक्ट विच वी आर मेकिंग, द इंडस्ट्री जो जिस इंडस्ट्री में हम हैं, हाँ जी। वहां हमारे पास में मोस्ट ऑफ द थिंग हैंड पेंटिंग से हो रहा है और करेक्ट। आर्टिस्ट का काम है। तो आइदर वो आर्टिस्ट अपना काम कर सकता है, आइदर वो हमें रिपोर्ट कर सकता है।
तो हम कोशिश ये करते हैं कि मेरी टीम भी, निखिल अगर आप बात करेंगे तो मेरी टीम मेरे ऑफिस से ज्यादा अपने घर से काम करना प्रेफर करती है, और आई लाइक देम टू डू दैट। बिकॉज होता क्या है ना कि वो उनको आर्टिस्ट वर्क करना है, उनको पेंटिंग करना है, रिजेम्बलेंस देना है फेस में, उनको अपना काम अपने हिसाब से करना है। तो मैं उनको ये फोर्स नहीं करना चाहता हूँ कि आप 10 to 6 आइए और अपना काम करें या 9 to 5 की जॉब कीजिए। मेरा काम ऐसा है कि यार आपको दिन में एक मिनिएचर बनाना है, यू वांट टू डू इट इन अ नाइट, डू इट इन अ नाइट। आप चाहते हैं कि आप उसको दिन में करें, आप दिन में करें, बट एंड ऑफ द डे काम हो जाना चाहिए। मेन फंक्शन वो होता है। तो जो वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भी बहुत आसानी से हो जाता है उसमें। अच्छा, तो मेरा तो एक जो सवाल था, आई थिंक उसका आपने इन पार्ट्स जवाब दे ही दिया, बट मुझे फिर भी वो सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन टर्म दिस पर्टिकुलर बिजनेस अ नीश बिजनेस, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे लोग नहीं है जो मिनिएचर मॉडल्स के बिजनेस में है, स्पेशली इन द Exactly. स्मॉल बिजनेस ब्रैकेट अगर कहा जाए तो, यू नो। तो अगर इफ somebody wants to start something like this, जिसमें जैसे आपने भी वक्त लगा करके 1-1.5 साल लगा करके आपने सीखा, एंड you found out कि about 3D scanners and 3D printers, and then the challenges that you faced कि अगर accuracy चाहिए तो फिर जो इंसान जिनको अपना बनवाना है उनको आकर के स्कैन करवाना होगा, और अगर हमें बाहर दिखना है तो ऑफकोर्स फोटो से करना होगा। then you started working with an artist, so all of these learnings आपने ऑन द फील्ड ही एक्सपीरियंस से अपने सीखी। तो अगर मान लीजिए किसी को ऐसा ही सिमिलर टाइप का बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए अगर उनको कुछ एडवाइस देनी हो कि ऐसी ऐसी चीजों का, मतलब मान लीजिए कि मतलब मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई ऐसा पूछेगा तो मैं कहूंगा कि हाँ, आप 6 महीने सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए रखिए। आप उस टाइम पे मतलब मे बी ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं तो 6 महीने में मतलब बिजनेस को यहाँ से वहां पहुंचा दूंगा, बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट इट। यू देयर विल बी some hurdles that will come your way. You'll probably face some challenges जिसको ओवरकम करने में कितना टाइम लगेगा आपको नहीं पता है। तो उस तरीके के अगर कुछ आपको पॉइंट्स देने हो टू somebody who would want to start something as niche, if I may use that word, something as niche as what you are doing, which is 3D miniature models, उस तरीके का अगर किसी और को कुछ करना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि मतलब वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करने का? लेकिन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। आप बिना लर्निंग के तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये 3D प्रिंटिंग या मिनिएचर इंडस्ट्री नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको लर्निंग का एक पार्ट तो, जैसे मैंने भी जब अपना जॉब छोड़ा था तो पहले 2-3 महीने मैंने 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम किया था ताकि मैं उसको 3D प्रिंटिंग को समझ सकूं। अब 3D प्रिंटर्स थोड़ा लो रेंज कैटेगरी में भी आ चुका है। मतलब आप चाहें तो एक डेस्कटॉप प्रिंटर की तरह उसे अपने घर पर भी लाकर यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई सेम इंडस्ट्री में अगर आना चाहता है और गिफ्टिंग और इस चीज में अपने करियर बनाना चाहता है, तो मेरा मेन सजेशन ये रहेगा कि पहले 2-3 महीने अपना काम ना भी छोड़े तो भी वो लर्निंग पर पूरा ध्यान दे। मतलब अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं नहीं यार 9 to 5 जॉब छोड़ के और अपना काम स्टार्ट करूं, तो अगर वो करते हैं तो इट इज वे बेटर। आप जब पूरा फोकस किसी एक चीज पर लगाते हैं तो उसका सक्सेस का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पे, आपको जब तक फेथ नहीं आएगा कि नहीं हाँ ये मैं कर लूंगा और ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, जब तक वो फेथ आप में नहीं आएगा, जब तक वो आपका भी जील डेवलप नहीं होगा अंदर से कि आप क्या इसको कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो हर इंडस्ट्री का ये रूल होता है। तो आप पहले उसको इनिशियली छोटे वीडियोस से शुरू कीजिए। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आप ब्लॉग्स पढ़िए, आप लोगों के ब्लॉग्स देखिए कि मशीन कैसे काम करता है 3D प्रिंटिंग। वो काम करने के बाद में आप उसको और कैसे उसको आप अपने काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप मिनिएचर का ही काम करना चाहते हैं तो वो मिनिएचर वाला काम आप कैसे करना चाहते हैं, उन सब चीज की लर्निंग पे ध्यान दीजिए। एक बार अगर आपकी कमांड आपकी मशीन पे हो गया, जब मशीन के ऊपर आपका कमांड हो गया, तो देन द सेकेंड थिंग्स कम। आपने देख लिया कि हाँ भैया मेरा मशीन पे पूरी तरीके से कमांड है, आइदर इट इज अ मिनिएचर, और अगर आप इंडस्ट्रियल वर्क में जाना चाहते हैं, अगर आप गियर प्रिंटिंग या जो फर्नीचर वर्क है या किसी और काम में आप जाना चाहते हैं जो 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, अगर आपके पास में आपका कमांड अगर आपके 3D प्रिंटर पे नहीं है तो फिर आप बहुत जगह लैग करेंगे। लेकिन अगर आपका मशीन पे आपका कमांड है तो देन आपका फिर सेकंड फोकस होना चाहिए अपनी टीम बिल्डिंग पे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी इनिशियल लेवल में क्या किया था, मैंने जो अपनी टीम बनाई थी वो बार्टर सिस्टम के बेसिस पे थी कि यार मैंने एक फोकस कर लिया कि यार मैं अपनी चीज जो है वो 3,000 में बेच रहा हूँ,
तो मुझे ये चीज एंड टू एंड मेरा पूरा, अगर 500 रुपए भी मुझे बचते हैं या उससे भी कम बचता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जेब से लगे, क्योंकि अगर मैंने इनिशियली किसी को हायर कर लिया तो देन इट विल कम टू मी कि मुझे अब इनको फीड भी करना है, अपनी कंपनी को भी फीड करना है, राइट? तो फिर वो एक बर्डन आ जाता मेरे पास में। तो मैंने क्या बार्टर सिस्टम में काम किया। अब विद आर्टिस्ट, जो 3D प्रिंटिंग आर्टिस्ट हैं या पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, सबके साथ मेरा एक बार्टर सिस्टम था कि यार हम स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे कि मेरे पास में अगर ऑर्डर आता है तो मैं आपको ये ऑर्डर बनाने को दूंगा, और अगर आप बनाओगे तो कोई अमाउंट दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पर पीस। उससे मुझे क्या हुआ कि मुझे ये टेंशन फ्री हो गया कि मुझे किसी का सैलरी निकालना है हर महीने। तो जब वो इनिशियल फेज में जो 6 महीने 8 महीने जब तक मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हुआ था, मुझे मेक माई मिनी के नाम से कोई जानता नहीं था, जब मुझे बताना पड़ता था लोगों को कि मिनिएचर क्या होता है, बिकॉज अगर आप आज भी अगर जैसे रैंडमली बाहर जाके किसी को बोलेंगे ना कि भैया 3D प्रिंटिंग, तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कोई डिजिटल मॉडल से पूरा फिजिकल मॉडल रेडी कर रहे हैं। उन्हें ये लगेगा कि आप कुछ 3D प्रिंट कर रहे हैं, जैसे फ्लेक्स प्रिंटिंग होता है या मोबाइल के पीछे का बैक कवर होता है, या अगर आपने वो इल्यूजन वाले प्रिंट देखे हो उनको भी लोग 3D प्रिंट बोलते हैं, राइट? तो उससे कंपेयर करने लगते हैं। तो मुझे पहला इनिशियल समय उसी में लगा कि यार बताने में कि 3D प्रिंट होता क्या है। नाउ इंडस्ट्री नो। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे बेसिक कोर चीज है आपका कमांड मशीन पे हो जाए। वो 1 महीने में होगा, वो 2 महीने में होगा, वो 4 महीने में होगा, वो साल भर लग जाए भले। अगर आपका कमांड आपकी मशीन पे हो गया, देन फिर आपको फोकस करना है टीम बिल्डिंग पे। उसके पहले अगर आपने मशीन पे ही कमांड नहीं है और आपने टीम भी बना लिया है, तो फिर ऑर्डर आ भी गया है तो आप फिर मशीन पे कमांड नहीं है तो काम कैसे करेंगे? वो बात भी सही है। तो हाँ, तो आपका जो भी नीश है बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास में प्रोडक्ट रेडी है, नो वरीज। आप प्रोडक्ट हो सकता है कि आप ट्रेड भी कर रहे हैं, आपने इंपोर्ट कर लिया चाइना से या फिर लोकल वेंडर से आपने उस चीज को परचेज कर लिया, तो परचेसिंग पावर आपके पास में है बिकॉज ऑफ द कैपिटल। लेकिन जब तक आपके पास में किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या अपनी वेबसाइट पे उसको सेल करने के लिए प्रॉपर पूरा चेन डेवलप नहीं हुआ है आपका, तो फिर आप लैग कर जाएंगे, वो आपका प्रोडक्ट पड़ा ही रह जाएगा। तो उस इन्वेंट्री को आपको सेल आउट करने के लिए आपके पास में एक प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम होना चाहिए कि वो बनेगा कैसे। अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो वो आने के बाद में फिर वो सेल आउट करने का प्रोसेस क्या होगा। क्या आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जाना चाहेंगे या आपकी खुद की वेबसाइट के थ्रू जाना चाहेंगे? तो क्या आपके पास में इन्वेंट्री को वेयर हाउस में रखने के लिए इतना समय है कि आप 6 महीने तक उस वेयर हाउस की कॉस्टिंग और वो सब भी मैनेज कर सकते हैं? तो ये छोटा छोटा सा जो अमाउंट होता है वो देखिए, अगर आप एक लार्ज स्केल प्लेयर है, आपके पास में लाखों रुपए हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह ये रहे हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ के ब्रेड एंड बटर के लिए ये काम करूं और फिर उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं, जो एक जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तब आई वाज डूइंग इट एज अ प्रोप्राइटर। नाउ वी हैव रजिस्टर्ड दिस कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म विद द नेम ऑफ पोरुक्रिश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मेक माई मिनी उसी का अंडर ट्रेडमार्क्ड है। तो ये पूरा जो, अब मैं चाहता तो पहले दिन ही उसको प्राइवेट लिमिटेड करा लेता, लेकिन ये जो 2018 से लेके 2022 एंड होने आया है, ये जो समय है वो समय समय पर हमने कुछ चैलेंजेस फेस किए, उस चैलेंजेस के बेसिस पे हम आज यहाँ पर इसको कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड तक लेके आए हैं। अभी भी जब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है तो भी हमें कुछ चीजें जो नेक्स्ट लेवल जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होता है उसको लाने में थोड़ा समय लग रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग मैन्युअली। हम पैकिंग मैन्युअली कर रहे हैं, राइट? हम कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युअली कर रहे हैं, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम एआई का यूज करें। बीच में कई बार हमारे साथ में वेबसाइट के भी चैलेंजेस रहे, क्योंकि आपके पास में अगर कैपिटल कम है तो आप फिर आपका सर्वर का भी इशू आ जाता है कई बार कि आपको सर्वर कितना बड़ा रखना है, क्योंकि कस्टमर तो आ जाएगा लेकिन वो सर्वर। एट दैट टाइम मुझे एक हेल्प इंस्टामोजो से भी बहुत अच्छा मिला, जब आपका फीचर ई कॉमर्स वाला लॉन्च हो गया तो हमने हमारे सारे प्रोडक्ट वहां भी लॉन्च कर दिए। तो कई बार क्या होता है, जब वेबसाइट पे ज्यादा रश होने की वजह से वो सर्वर डाउन वाला प्रॉब्लम हमने फेस किया, फिर लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग जाते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा है या पेमेंट डिले हो रहा है, पेमेंट कट गया है लेकिन पेमेंट फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो वो चीजें ओवरकम करने के लिए फिर हमने वो इंस्टाग्राम वाला इंस्टामोजो का लिंक यूज करना शुरू किया कि चलिए ठीक है, एक हमारे पास में हेल्पिंग हैंड है कि हम इधर से नहीं और उधर का लिंक देके हम उसको ऑर्डर को पूरा टिकट को कवर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस धीरे धीरे हमने फेस किए और उसको ओवरकम किया।
तो आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आपका हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आप हो सकता है स्लो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप डेली आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन आप सक्सेस जरूर मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, कंप्लीटली अग्री। योगेंद्र जी, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि सिंस ये वाला जो आपका अगेन मतलब आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड नीश, बट आई डोंट थिंक इट्स अ बैड वर्ड पर्टिकुलरली, बट आई मीन इट इन अ वे कि इट्स नॉट वेरी कॉमन। तो जैसे अभी तो आपने बहुत अच्छे से सारे डिटेल में बताया कि क्या किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक दिस। बट अगर मुझे आपसे ऐसा पूछना हुआ कि इस ऐसे एक तरीके के बिजनेस को शुरू करने के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, मतलब जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस में फेस किया हो कि मतलब ये जो चैलेंज है ये इस तरीके के बिजनेस में होगा ही, तो यू सॉर्ट ऑफ हैव टू ईदर डील विद इट और यू हैव टू फाइंड वे टू वर्क अराउंड इट। तो उस तरीके से अगर कुछ आपके एक्सपीरियंसेस में अगर रहा हो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही, आना ही है, तो अगर आप वो बता दें हमारे व्यूअर्स को तो शायद वो एडवांस में दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स कि हाँ ऐसा तो होगा ही हमारे साथ एट सम पॉइंट, सो वी माइट एज वेल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ऐसा अगर कोई आपके पास है इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, कोई कहानी आपकी। निखिल, मैं जब भी अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि मिनिएचर मैंने स्टार्ट किया, तो हाँ जी। वहां मेरे पास में दो चैलेंज थे। एक तो मिनिएचर भी निश में था और साथ में 3D प्रिंटिंग भी एक निश इंडस्ट्री था। करेक्ट। तो फिर मुझे भी ये चीज सोचना पड़ रही थी बार बार कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, कैसे मैं। पर जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड जो है वो पूरा जियो के आने के बाद में तो बहुत ज्यादा जब डिजिटलाइज होने लगी चीजें, हाँ जी। तो उसका मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिला। क्योंकि अगर आप देखें कि मेरे पास में जो एक कैपिटल स्टार्टिंग में था, उससे मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं होर्डिंग्स या मतलब पेपर और इसमें एड्स करके इस चीज को समझा पाऊं, और उससे लोग ये चीज समझ भी नहीं पाते। पर वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूज के थ्रू मैंने इस निश स्किल्स को लोगों तक पहुंचाया। तो जब आप ऐसा कोई भी निश स्किल्स होता है, मैं कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स और इनको जब सुनता हूँ, इवन बड़े बिजनेसेस की अगर हम बात करें, जब इलॉन मस्क और इनको मैं सुनता हूँ, जब उनके इनिशियल डे पेपाल और उस समय का जो इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे, तो जब उन्होंने पेपाल स्टार्ट किया था, या जब हम देखेंगे जेफ बेजोस ने अमेजोन स्टार्ट किया था, तो वो भी इस चीज से कि यार ई कॉमर्स पे खरीदेगा कौन। लोग यही सोचते थे कि यार जब मेरे पास में दुकान है, मैं उस दुकान से जाके ये चीज ला सकता हूँ, तो मैं ई कॉमर्स से क्यों लूं। हाँ जी। तो वो एक चीज जो होती है ना, उसको आप ओवरकम करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन आपसे आपका मन नहीं पूछेगा, आपसे बाहर के लोग भी पूछेंगे। आप आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे कि यार मैं यार एक चीज स्टार्ट करने वाला हूँ यार, मैं ये बनाऊंगा और ये मैं पूरे इंडिया में बेचूंगा, तो क्या होता है, ये कैसे बेचेगा, क्या करेगा, ये सवाल सबके मन में होता है। तो अगर सबसे पहले आपको अपने मन में क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ मेरा गोल क्या है, क्या मैं इसको अचीव करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि अगर आप बातों की बात करें, तो आप जितनी बार आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा, उतनी बार आपके पास में उस चीज का एक सॉलिड जवाब होना चाहिए कि नहीं, ये स्किल निश है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा लोगों को, और एक दिन ये हो जाएगा कि इतनी कॉमन हो जाएगी कि लोग मुझे इसके नाम से जानेंगे। करेक्ट। ये बहुत आपको मोटिवेट करता है। अगर आप दिन में अपना एक लक्ष्य बना लेंगे, नहीं यार मेरी चीज जो है, मैं उसे जब भी किसी को बताऊंगा तो इस तरीके से बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम उसे वापस पूछना ना पड़े। करेक्ट। जब पेपाल और इलॉन मस्क ने पेपाल बनाया, उसके बाद में जब पेटीएम इंडिया में आया, तो अगर आप देखेंगे कि वो समय इंडिया में भी इतना क्रेज नहीं था, पर जो लोग जानते थे, मतलब मेट्रो सिटीज में जो पेपाल को जानते थे, या जो मतलब ग्लोबली चीजों को इंटरनेट के थ्रू समझ रहे थे, उन्होंने बहुत आसानी से उसको पेटीएम को यूज करना स्टार्ट किया। द सेम थिंग, वो नीच था, लेकिन वो आज देखिए आप हर एक वेंडर के पास में अगर आप देखेंगे, अगर हर एक मतलब रेडी पे भी आप देख लेंगे या किसी बड़े मॉल में भी देख लेंगे, तो लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। सेम चीज हाँ, तो वो यही चीज गेटवे के साथ भी है, जैसे इंस्टामोजो हो गया या पेपाल की मैंने आपको बताया। तो ये सब गेटवे भी उसी तरीके से मतलब एक समय पे नीच था। लोगों का यही था कि यार भैया मैं अपना बैंक अकाउंट दे दूं, आप बैंक अकाउंट में मुझे नेफ्ट करवा दीजिए, हाँ जी, मैं पहले जाके अपना बैंक चेक कर लूंगा, अगर मेरी पासबुक में लिखा हुआ आ गया कि भैया हाँ निखिल ने ये पैसा मुझे दे दिया है, तो मैं भेज दूंगा चीज कुरियर करके। लेकिन आज आप इंस्टामोजो से पेमेंट लेते हैं और इंस्टामोजो से मेल चला जाता है कि भैया हाँ ये अमाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है।
तो ये चीजें डिजिटलाइजेशन के साथ बहुत आसान हुई। अब आपको आपके मन में पक्का करना पड़ेगा कि अगर मेरी स्किल नहीं है और लोग उस चीज को नहीं जानते तो निश स्किल के लिए आपको कितना समय देना है। आपके पास में भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि नहीं यार, एक दिन में तो नहीं समझेंगे लोग, 2 दिन में नहीं समझेंगे। फिर मैंने उसके साथ साथ में बैकलिंक्स प्रोड्यूस करना, और जो जैसे आप देखेंगे कि अगर आपको एसईओ में भी टॉप पे आना है तो आपको रैंकिंग के लिए बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करनी होती है। तो मैंने सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबके पास में इंटरनेट आज बहुत आसानी से अवेलेबल है। और अगर मैं इंटरनेट के थ्रू इस चीज को करने की कोशिश करूंगा तो बहुत आसानी से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगा। दूसरे किसी भी, अगर आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की बात करें तो आप आपके शहर में या आपके एरिया में तो उसको पब्लिसाइज कर सकते हैं, पर एक इंडिया लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे अगर आपको उसको ले जाना है तो इंटरनेट से अच्छी पब्लिसिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा। सो दैट वाज द थिंग जो मैंने बहुत इनिशियली। फिर थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी था, सो आई कम फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली, तो मैंने उस चीज का भी बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। मैंने कई स्पिरिचुअल लीडर्स को उनके मिनिएचर्स बना के गिफ्ट किए। सो व्हेन दे सी इट कि यार हूबहू मेरा रेप्लिका रेडी है विदाउट नोइंग कि हाँ भाई, तो उससे मुझे अच्छा पब्लिसिटी मिला। आई वॉज फीचर्ड इन लाइक स्पिरिचुअल चैनल संस्कार और आस्था पे मेरे बारे में उस समय आया। देन अगर आप सब टीवी पे वागले की दुनिया अपने प्रोग्राम के बारे में सुना हो, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने मेरी वेबसाइट को यूज किया मिनिएचर्स के बारे में बताने के लिए। इट वॉज द होल 30 मिनट्स ऑफ एपिसोड अराउंड मिनिएचर्स, 3D मिनिएचर। और उसमें उन्होंने मेक माई मिनी के बारे में और वो वेबसाइट पोर्टल भी उन्होंने शो किया। तो जब वो चीजें हुई ना, तो फिर अंदर से मुझे आने लगा कि हाँ, अब लोग उसको पसंद करना शुरू कर चुके हैं। अब अपने पीछे हटने का रास्ता अब बिल्कुल भूल जाओ। अब प्लान बी भी यही है कि प्लान ए को सक्सेसफुल बनाना है। तो मेरा प्लान बी भी फिर वही बन गया कि अब मेरा प्लान ए सक्सेसफुल होना चाहिए। तो देन फिर मुझे अब लोगों को समझाने में आसानी होती है, क्योंकि मैं वो वीडियोस उनके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारा इंदौर का लोकल मैगजीन था, बहुत अच्छा मैगजीन था वो, इंदौर वॉयज, नाउ इट इज इंडिया वॉयज। तो उस मैगजीन में उन्होंने मुझे फीचर किया, और इवन ऑन देयर यूट्यूब चैनल। तो फिर धीरे धीरे चीजें आसान होने लगी। शुरुआत बड़ी मुश्किल थी। आई वॉज इन्वाइटेड इन माई ओन यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बीई किया है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। मैंने वहां पर 3D प्रिंटिंग का सेमिनार लिया फॉर द फैकल्टीज, एचओडीज एंड द प्रिंसिपल्स एंड देम, जो जिनसे मैं पढ़ा था। मतलब उस समय मैं इतना शिवर कर रहा था ना कि यार मैं कैसे इनको समझाऊं, मैं तो इनसे समझ रहा था, आज इनको मुझसे 3D प्रिंटिंग। तो वो एक बहुत, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी 3 दिन का लेक्चर लेने के लिए बुलाया। नाउ आई इंटरेक्ट विद स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो, इंटरनेशनल स्कूल्स में मैंने अपने सेमिनार्स लिए। तो वहां से फिर मुझे लग गया कि यार दिस इज गोइंग गुड, अब सब अच्छा ही होगा। पर हाँ, जब सब अच्छा हो रहा होता है, जब आपको इनोवेशन भी देखना होगा। आप अगर एक चीज पे स्टिक कर जाएंगे, वी स्टार्टेड विद द 8 इंच ऑफ मिनिएचर, अब हम लाइफ साइज मॉडल बना रहे हैं। तो हमने उसको धीरे धीरे, नाउ वी हैव अ प्रिंटर जिससे हम लाइफ साइज तक का भी मॉडल प्रिंट कर सकते हैं। वी प्रिंट इट इन अ पार्ट। सो एग्जैक्टली अगर आप देखें कि हमारे पास में एक प्रिंटर है, जिस प्रिंटर का साइज 500 बाय 500 mm है, तो उसमें 2 फीट तक का मॉडल आसानी से रेडी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 7 या 8 फीट का हमें ह्यूमन स्कल्पचर रेडी करना है, तो उसको हम 2 से 3 पार्ट में उसका डिजिटल फाइल रेडी कर लेते हैं। और फिर उसको फुल एक मिनिएचर के फॉर्म में से हम लाइफ साइज मिनिएचर तक ले जाते हैं। तो वो लाइफ साइज तो फिर मिनिएचर रहता नहीं है, लेकिन वो हमने उसको, अब क्योंकि क्या मेक माई मिनी को लोग मिनिएचर के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो हमने पोर्टल पे उसको लाइफ साइज मिनिएचर लिख रखा है। वी नो दैट लाइफ साइज इट्स नॉट अ मिनिएचर, बट वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है कि हाँ ठीक है, मिनिएचर, मुझे लाइफ साइज मिनिएचर चाहिए, या मुझे बस्ट। कोविड के बाद हमारे पास में ऐसे ऑर्डर भी बहुत आए जिसमें मतलब मेमोरियल मिनिएचर्स हमने बहुत बनाए, क्योंकि उस समय बहुत से लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया। तो वो चाहते थे कि यार उनका कुछ हमारे पास में एक मिनिएचर या ऐसा हो।
उसमें हमने मतलब बहुत से ऐसे मिनिएचर, उसमें हमने बहुत ऐसा ध्यान भी दिया कि हम उसको थोड़ा समय ज्यादा ले लें, लेकिन रिजेम्बलेंस उसमें बहुत 90-95% से भी ऊपर रिजेम्बलेंस हम दे पाए, बिकॉज इफ यू आर लाइक गेटिंग इट फॉर योर लाउड वंस, तो फिर आपको वो उसकी याद भी दिलाना चाहिए जिस पर्पज से आपने उस चीज को लिया है। तो हमने ऐसे कई मिनिएचर्स 1-1 फीट 2-2 फीट के बनाए, जो कि मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, मतलब कस्टमर का जब रिप्लाई ये आता है कि यार इट इज रियली, हमको लगता है कि हमारे मम्मी पापा या दादा दादी बिल्कुल हमारे साथ में हमसे बात कर रहे हैं, तो वो लाइवलीनेस हमने उसमें डालना शुरू करी। तो धीरे धीरे ऐसे ही धीरे धीरे आपका निश बिजनेस जो होता है वो एक दिन लाइमलाइट में आ जाता है, और फिर वो नॉट दैट निश रह जाता है। अब हम जो मेरे साथ में काम करने वाले कुछ और भी ऐसे लोग थे जो कि पहले मुझसे लेकर रीसेल कर रहे थे प्रोडक्ट, और उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट लॉन्च किए लाइक रेजिन की चेन्स और ऐसी चीजें। तो अब हमने उनको भी हमारी वेबसाइट पे इंक्लूड कर लिया है कि ठीक है यार, हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, अगर किसी को और भी चीजें ऑर्डर करनी है तो कोई बात नहीं, हमारा वेबसाइट को हम अब जब एसईओ हो चुका है और वेबसाइट रैंक कर रहा है, और वेबसाइट इज रैंकिंग ऑन लाइक अभी तो सेकंड या थर्ड पे रैंक कर रहा है, फर्स्ट पेज गूगल की। लेकिन 3 साल तक हमारा वेबसाइट लगातार विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट गूगल पे फर्स्ट रैंक किया, 2019, 20 एंड 21। Like if you will write a miniature 3D miniature on a Google, right, Make My Mini टॉप पर था 3 साल तक। that's wonderful. And it is without ad. Like my जो सोशल मीडिया टीम जिनका मैंने आपको बताया भी, मनीष जो डिजिटलास्टिक से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो एसईओ का पूरा काम किया था, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो अपना काम जानता है, तो मैंने वो पूरा यार कि यार मनीष यू हैव टू डू दिस थिंग। मैं मुझे मेरा काम पता है कि मैं मिनिएचर बना कैसे सकता हूँ और उसको भेज कैसे सकता हूँ, पर डिजिटली जो मेरा हाथ कमजोर है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। मैंने कई इंडस्ट्री के लोगों से मैं जब मिला, तो मतलब जो पहले से 10-10 साल 15-15 साल से काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने ये भी पूछा कि यार ऐसा कोई सब मतलब कोई चीज है जिससे इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं हम, 2x 10x तक ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला योगेंद्र, इसको 10x और 2x ले जाना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन लाइक पुट द कैपिटल और वो हो जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ में इस चीज के लिए भी रेडी होना पड़ेगा कि वो 4x से अगर 1x हो गया, मतलब जहां पर आप बैठे हैं उससे भी अगर वो 50% हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको हर एक चीज देखना पड़ेगी। इट इज अ बिजनेस, तो आप यही नहीं देख सकते हैं कि मतलब हमेशा आप मतलब ग्रो ही करेंगे। उसमें फुटफॉल अभी आपके पास में अच्छा है, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका वो डाउनफॉल भी आए, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि 2018 में जब शुरू किया तो पहले महीने में 2 ऑर्डर थे मेरे पास। फिर जब मेरा वेबसाइट रेडी हो गया और मैंने इंस्टामोजो और सारा चीज से पेमेंट लेना शुरू किया और डिजिटली मेरा फुटप्रिंट आने लगा, तब मेरे पास में 10-12 ऑर्डर महीने के आते थे। धीरे 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 वो ऑर्डर की रेंज बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब इवन आई वाज डूइंग अराउंड लाइक 50-60 ऑर्डर अ डे। तो इस लेवल तक भी हम आ गए थे। लेकिन फिर कोविड आया, और कोविड आने के बाद में एकदम से फुटफॉल आ गया, जो फॉल आ गया हमारे उसमें। जो हमारी वेबसाइट का फुटफॉल था वो लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि लोग ऑर्डर करना चाह रहे थे ऑनलाइन, लेकिन हम ऑर्डर लेने के लिए अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि केवल एसेंशियल थिंग्स ही जा रही थी। तो 0 ऑर्डर अ डे हमने 3 महीने तक बिना किसी ऑर्डर के साथ काम किया, बिना किसी ऑर्डर के साथ। एक सिंगल ऑर्डर नहीं था हमारे पास में इनिशियल 3 महीने, जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा। एट दैट टाइम आई यूज्ड माय मशीन फॉर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैंने इन 3D प्रिंटर से मास्क बनाए, जो अगर आप फेस शील्ड अगर आप देख रहे होंगे स्टूडियो और उनका फेस शील्ड जो आता है, करेक्ट, अभी हेलमेट वाला जो फेस शील्ड आपने देखा होगा, तो हमने OHP पेपर, मतलब मैं कर्फ्यू के टाइम बाहर जाकर के OHP पेपर्स के शीट खरीद के लाया और 3D प्रिंटर से मैंने वो मास्क बना के और इंदौर के हर एक हॉस्पिटल और हर एक पुलिस स्टेशन में डिलीवर किया। आई वर्क फॉर 20 आवर्स अ डे इन कोविड। उसमें मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं था, लेकिन इट वॉज अ टाइम की टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मैं 3 महीने तक लगातार उनको प्रिंट करता था, खुद भी उसको मास्क को पहन के जाता था, और हर एक हॉस्पिटल में मैंने इंदौर के कम से कम 25 हॉस्पिटल में 50-50 शील्ड डेली जाकर डिलीवर किया।
वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने करी। ये आई थिंक मतलब इस तो चीज को आप ऐसे पैसों के फायदे से तो देख नहीं सकते हैं, बट इसका फायदा तो आई थिंक आपको जिंदगी में मिलेगा फिर आपको आगे जाकर के जरूर। तो ये तो बहुत ही एग्जैक्टली अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली योगेंद्र जी, हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक टाइम हो गया है। हमने बट आई थिंक मोरलेस काफी सारे हमने जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे जिनके बारे में हमें बात करना था। तो अब अभी तो मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और काश हमारे पास और वक्त होता है, हम डेफिनेटली जरूर फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर श्योर। बहुत सारी चीजें हैं लोगों को भी जो सुनना चाहेंगे, और मैं खुद भी सुनना चाहूंगा, और हम सीखना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंसेस से, बिकॉज इट्स सच एन इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल दैट यू हैव। आपका जो प्रोडक्ट भी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल्सो टू द व्यूअर्स जो देख रहे हैं, प्लीज डेफिनेटली गो चेक आउट makemymini.com। बहुत ही कूल है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है इनकी, तो डेफिनेटली जाकर के देखिए आप। एंड योगेंद्र जी, अगर आपको कुछ ऐसे क्लोजिंग थॉट्स अपने देने तो आप दे सकते हैं अभी। थैंक यू निखिल। आई वुड लाइक टू थैंक्स यू इंस्टा मोजो और जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड भी अगर कोई सवाल है तो आप पर्सनली भी मुझे डीएम कर सकते हैं या मेक माई मिनी पर भी डीएम कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू आंसर योर क्वेश्चंस and really thanks Nikhil. It is really enjoying session, or hopefully we will connect one more time Yes, yes, for sure. We'll in future. definitely connect. Thank you so much, Yogendra. And thank you everybody for watching. Have a good evening and the remaining weekend. And take care. Thank you. Bye Nikhil. Bye bye.